We can see Anjali. Yeah. I request Dr. Swati to please show us the video. Ma'am, you'll have to stop sharing your screen. Yeah, I will. Visible, ma'am? No trash, no cash, no rash. Cost effective for people who can't afford to buy sanitary pads time and again, and it is hassle free as well, so I'd recommend everyone to use it. Use this menstrual cup for more than 5 years. It's very comfortable, leak proof and stress free. यह कप मंगलसूत्र से भी ज्यादा संभाल के रखती हूँ क्योंकि ये मुझे पीरियड्स के दिनों में सुकून देता है. To worry about, do I have a pad on me? Am I staining my pads? Do I need to change my pad? Am I going to get a place to change my pad? All of that's just gone. If you can't reuse it, refuse it. Has changed my powerlifting to stress-free and carefree session full of confidence. You can swim, you can dance, you can fly. And initially it takes a little time to get used to it, but within 2 uses I think you'll be comfortable. And after that it's a safe sale. There's absolutely no problem using it, and you won't even realize you're using it after a point of time. 1 cup equals to 7 years of freedom. Did my 200 kilometers cycling breve wearing a cup. I also ran 10 kilometers wearing a cup. It helped me feel safer. It helped me improve my performance. And I wish I had known about it earlier. I'm enjoying stain-free and mess-free periods with it. Hope you will have the same experience. माझी जेव्हा फाईल येते तेव्हा मी हा कप यूज करते. मला हा कप खूप छान म्हणजे कम्फर्टेबल वाटतो आणि माझ्या मैत्रिणी आहे त्यांना पण मी सांगितलं आहे. Every period is a happy period. Thank you, Swati. I now invite our dear President Ma'am, Vaidehi Ma'am, to give her welcome address. Thank you so much, dear Anju. Very good morning to all of you. Today's esteemed celebrity guest, the Master Chef Vishnuji, respected teachers and my seniors, dear friends, boys and girls. I welcome you all to the finale of our Ganpati festival and the NutriFest week celebration, and for the Energious Teachers celebration. Teachers give us food for thought and chefs fill the food on our plate. What better way to have a wholesome, enriching Sunday morning in the company of our most revered teachers and the celebrity master chef. Teachers Day is the most important and the right day to pay our tributes to our senior most and most respected teachers who have guided us on this path of knowledge and freedom. So without much ado, I welcome all of you for today's function once again. Let's rock the festive organ of the VR world. Thank you very much. Thank you, ma'am. We observe the Nutrition Week from the 1st of this month. On account of this, NOGS celebrated the NutriFest week, wherein varied activities like public awareness sessions,
especially in diet for 40 plus females, pregnancy, PCOS, etc. were conducted. We also had the opportunity to interact with our IS fitness directors for achieving weight loss the healthy way. All these events received tremendous response from all across the country. And then we had the star celebration, that is the NutriFest culinary contest, wherein our enthusiastic NOGS members poured in amazing recipes. And the categories for this culinary contest were healthy, containing of high protein recipes. Then we had the Rang Birangi Health Bhi, which had high antioxidant containing foods including salads. And then we had Health Bhi, Taste Bhi, which comprise of desserts using natural sweeteners. एक मिनट आना. Celebrity Master Chef Vishnu Manohar sir has been very kind enough to accept our invitation to grace this occasion as well as judge this contest. Now, this most admired chef of Central India, he needs no introduction. He heads the flourishing Manohar Group of catering business. He has authored numerous cookery books, and he is a multiple world record holder. He has a world record in the largest and biggest quantity of food making and the longest stretch of cooking. Millions are fans of his finger-licking signature dishes. He has been kind enough to accept our invitation in spite of his busy schedule. So here I present before you Mr. Vishnu Manohar sir. And for this great bait with sir, I invite our Chulbuli Chatpati, the young enthusiastic Dr. Parul Sharma. She is practicing gynecologist and director at Omega Hospitals. Over to you, Parul. Thank you, Anjali ma'am. Thank you so much. So here we are. Good morning, India. You're a very happy Sunday to all you people. The whole point of the week is the weekend, where we can just sit, relax, and have our brunch. I, Dr. Parul Sauji, invite you all for this mega fest, NutriFest, which is the conclusion of our Festival Gyan, for this tasteful and mouthful session of NutriFest week. As my name suggests, Parul Sauji. So all you chicken saviors and diggers, I'm sure you will agree that there wouldn't be anybody better to put the tadka with the great chef, the best and the very own from Nagpur, Mr. Vishnu Manohar sir. I would like to say that this great bait with Master Chef, who pins down, cooking is the heartbeat of my life. I welcome you, Vishnu Manohar sir, to our show today. And I'm sure we together, all of us here, would bake fun. So all you beautiful ladies and handsome gentlemen, put on your best of aprons and let's rock and roll. So sir, here I welcome you for choosing to be with us on this platform today. So when I was a kid, I used to always envision myself, Dr. Parul, Dr. Parul. तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि बचपन से ही आपके दिमाग में ऐसा था क्या? मास्टर शेफ विष्णु, मास्टर शेफ विष्णु. So that is where we start. How did the journey begin? नहीं, मेरे दिमाग में मास्टर शेफ विष्णु ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे लीग से हटके कुछ करना था, ठीक है? So that at the age of maybe 6th में था, 6th standard में, मैंने एक फिल्म देखी थी याराना. तो याराना मूवी जब मैंने देखा तो उसमें अमिताभ बच्चन जी थे कि जो बहुत अच्छे सिंगिंग टैलेंट उनमें था और उनका दोस्त उनको जीरो से हीरो बनाता है. तो मैंने सोचा उस समय कि भैया लाइफ में ऐसे ही कुछ करना चाहिए कि ताकि लोग हमें पहचाने, जाने और कुछ हटके हम बने. तो वो एक सोच दिमाग में थी, बट क्या करना ये नहीं पता था. पर धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे लगा कि हाँ, एक्टर बनना बहुत अच्छी चीज है कि जिससे हमें लोग जानेंगे, और मैं थोड़ा उसके पीछे था, जो कि मेरा बैकग्राउंड है आर्टिस्ट फैमिली से. मेरे पापा फाइन आर्टिस्ट थे
और उनका स्टूडियो था एक, मम्मी बहुत अच्छा गाती थी। तो ये बैकग्राउंड होने के कारण मुझे लगा कि ठीक है हम एक्टिंग कर लेंगे, मुझे अच्छी भी लगती थी, पर धीरे धीरे ये सोच बदल गई। Sir, from the era where we are talking about, जहाँ पे लड़कियां were synonymous to kitchens and men going out and being professionals like doctors, engineers, how difficult was it for you? मतलब the acceptance from the society to choose cooking, not just as a hobby, but as a profession. हाँ जा, उसके ऊपर मैं आऊंगा, बट ये मेरा चेंज माइंड कैसा हुआ, ये थोड़ा सा मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा आपको। Definitely, sir. हाँ, मेरे पापा आर्टिस्ट थे, बट वो मनी मेकिंग में कभी नहीं थे, और घर की हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो पापा हमें थर्माकोल के लेटर्स काट के देते थे, और हम वो लेटर्स लेकर उस समय क्या, मेरे स्कूलिंग मैंने सोमवार हाई स्कूल रामदासपेट से किया, और बर्डी में हमारा घर था। तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देन हर्डस हाई स्कूल, देन भगिनी मंडल, ऐसे ही हॉल थे गिने चुने जहाँ पे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस या शादी के रिसेप्शन होते थे। तो मैं जब घर से निकलता था तो जाते जाते देखता था कि कहाँ कुछ तो फंक्शन है, तो चहल पहल दिखती थी। फोटो तो साथ में रहते थे हमेशा। और 4 पीरियड के बाद मैं स्कूल से भागा दौड़ा करते हुए आता था, पूछता था भैया ऐसा मैंने डेकोरेशन करता हूँ, मैं 50 रुपए में आपको करना है। वो यदि हाँ कहे तो फिर वापस स्कूल जाना, फिर 6 पीरियड के बाद स्कूल से घर जाना, छुट्टी मांगकर थर्माकोल के लेटर्स काट कर फिर वो लेकर आना और शाम को लगवाना। उसमें 50 रुपए मिलते थे। एक ऐसा ड्रॉप होता था पीछे में, 2 नाम से, चलो अभी आपका ही नाम लेता था, पारुल, और उनके साथ कोई और जो भी उनका भी होने वाला है उनका नाम, और उसपे फूल की माला ऐसा करा के वो 50 रुपए मिलते थे। और दूसरा एक अट्रैक्शन ये होता था कि खाने का तो बहुत पहले से शौकीन था बचपन से, तो ऐसे लगता था कि हाँ कुछ जो होस्ट है वो कहेंगे भैया खाना वाना खाते थे, तो मजा आती थी। तो ये दोनों मेरे पर्पस सॉल्व हो जाते थे। तो ऐसा मैं तकरीबन 3 साल किया, 7th 8th 9th तक। 9th में मुझे एक कैरेक्टर मिला। जब तक मैं इसके पीछे था एक्टिंग, और या तो मैं चाहता था कि मैं पापा जैसा आर्टिस्ट बनूं। तो एक कैरेक्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ भला बुरा कह दिया। तो उस समय मैंने जिद में आके उनसे कहा कि मैं अब यही बिजनेस आपका करके बताऊंगा, और फिर ये दिन आज का है। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि भाई मेरा जो मैंने एक्टिंग करना था, मुझे एक्टर बनना था, वो तो नहीं हुआ। फिर भी मैंने 10th के बाद मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट मैंने देखा, ज्वाइन किया। बट वहां 2-3 महीने रहने के बाद मेरे लगा नहीं कि भैया 5 साल के बाद मैं अमिताभ बच्चन बनकर बाहर तो नहीं आऊंगा, बट मैंने जो बिजनेस शुरू किया है वो कहाँ तक मुझे ले जाएगा मुझे पता है, और वो मैं कंटिन्यू करने वापस नागपुर आया। बहुत बड़ा डिसीजन था वो, बट मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि आफ्टर ऑल मनी मैटर्स ना। पर उस समय जब मैं देखता था कि मैं 10th 11th में था, तो मैं जब कैटरिंग का काम करता था तो मेरे हम उम्र के बच्चे जो थे, 10वीं में था जब पहला कैटरिंग का काम किया, वो भी धनतोली में आइडियल टाइपिंग इंस्टीट्यूट है, मिसेस पांडे, उनके बेटे की शादी थी, 250 लोगों का पहला रिसेप्शन था हमारा। तो मैंने जब खुशी खुशी ये बात घर में बताने के लिए आया, तो मेरी सबसे पहले मम्मी डांटने लगी कि ये कुछ नहीं, सबसे पहले ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद जो भी करना है वो करो। और मैं छोटा मुंह लेकर वापस आया। उसके बाद में जब हमारे रिश्तेदारों को पता चला कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो वो कहने लगी कि अरे सिंधु का लड़का तो अय्या बन गया। सिंधु यानी मेरी मम्मी, उसका नाम सिंधु था। अय्या मीन्स पंडित, खाना बनाने वाला। और मेरे हमसफर जो थे साथी स्कूल के बच्चे, वो कभी कभी रिसेप्शन में आ जाते थे किसी शादी में, और उनको दिखता था कि मैं काम कर रहा हूँ, तो वो कहते देख रहे वो प्लेट उठा रहा है, वो देख रहे टेबल उठा रहा है। तो ये ताने बाने मैंने सुने, बट मैंने उसके ऊपर और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे मालूम था मैंने कहा था। Surely sir, आज जब वो आपको देखते होंगे तो they would be totally guessing they shouldn't have spoken whatever they did then. But ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि we have begun to raise our daughters
more like our sons, but very few of us have the courage to raise our sons like our daughters. I think that is very important, and sir, you've set a very, very wonderful example for all the youngsters कि कोई भी चीज का प्रोफेशन बना सकते हो if it is your passion and if you want to earn good out of it. And secondly, there is no restriction, there is no gender bias to any of the professions you want to pursue. Especially Parul, in those days, जब हमारे टाइम में विष्णु and me, both of our classmates, हमारे टाइम में या तो आप डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर, और वो दो नहीं बन पाए तो आपको बीए बीकॉम करके कोई नौकरी करना है. महाराष्ट्र में तो यही ट्रेंड था. सो विष्णु हैज सेट एन वंडरफुल एग्जांपल ऑफ वेगयावाटा. यस, अलग लाइन. तो मुझे पसंद भी थी और बाद में मजा आने लगा कि खाना, हाँ, मेरा जर्नी बहुत ही, मैंने जब तक मैं खाना बनाना नहीं जानता था, जब मैंने केटरिंग काम शुरू किया, पर मैंने जब देखा कि भैया जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरे लोग काम कर रहे हैं, वो यदि अच्छे तरीके से करना है तो वो काम मुझे आना चाहिए. तो फिर मैंने उल्टी जर्नी शुरू की. मैं जैसे हमारे यहाँ जो काम करने महाराज लोग आते थे, उनके साथ हाथ बटाकर वो काम सीखने लगा. उस समय इतने शोज वगैरह नहीं थे संजू कपूर टाइम. वो आए 90s के बाद मेरे ख्याल से संजू कपूर जी का शो आया था. और फिर कुछ किताबें थी वो पढ़ लेता था. कुछ खोमचे वाले थे, पाव भाजी वाले थे, उनके पास आधी प्लेट पाव भाजी लेकर फिर आधी प्लेट पाव भाजी लेकर टाइम पास करना, ताकि वो पता चले कि उसकी स्टाइल कैसी है पाव भाजी बनाने की, या समोसे बनाने की, या चाट वाले की. तो ये सारा मैं अपनाता रहा. और जिसमें जैसे फिर इंटरेस्ट आने लगा, वाहवाही होने लगी, तो जाहिर है कि हम और वेज ढूंढते हैं. और क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट वगैरह कुछ किया नहीं, और फिर मेरे ख्याल से रोटरैक्ट क्लब ने मेरे को पहला मौका दिया एज अ शेफ या एज अ एक्सपर्ट उनके लेडीज को कुछ सिखाने का. मिसेस बोधनकर थी, मेरे ख्याल से वेरी को पता होगा मिसेस बोधनकर. आणि तो उन्होंने पहला मौका दिया कि मैं जो मेरी रेसिपीज मैंने कुछ डिजाइन की, तो वो लेडीज के सामने प्रेजेंट करने का. और मैंने पहले तो डरते डरते पहला शो किया, फिर बाद में शोज की संख्या बढ़ने लगी, और फिर मुझे पता चला कि हाँ, ये भी ये जरिया है कि लोगों के पास मैं पहुंचूं या लोग मुझे. सर डेफिनेटली आप डेफिनेटली सब लोगों के, हम लोगों के दिल में पहुंचे ही हुए हैं. आई डोंट नीड टू से दैट. सो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रगल्स व्हिच यू फेस्ड ऑन दिस फ्रंट, सर और कोई स्ट्रगल्स थे क्या? मतलब लाइक यू स्टार्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो, अदर थिंग्स आल्सो. तो और क्या क्या स्ट्रगल्स आपने देखी जो आप हमें बताना चाहेंगे? यू नो, यू पेव्ड योर पाथ थ्रू ऑल दिस. सो व्हाट ऑल वाज दैट? मतलब वी वुड वांट टू हियर इट. स्ट्रगल तो अभी भी शुरू है. हाँ, तो सबसे पहला स्ट्रगल जो था कि खुद को कहीं खड़े करना, क्योंकि उस समय हम तो बहुत ही बच्चे थे. छोटा देखो 15-16 साल का बच्चा, उसको कौन काम देगा? मेरे सबसे बड़ा भाई 20 साल का, वो भी पार्शियली हमारे साथ था, बाद में फुल टाइम आया. और मेरा उससे बड़ा भाई मजला भाई जो था मेरे से 2 साल. तो बच्चे देखकर कोई काम नहीं देता था. तो हम क्या क्या करते थे कि हमारी मम्मी को हमने कैसे वैसे पटाया कि मम्मी ये बहुत अच्छा काम है, ऐसा है वैसा है, जो भी है. क्योंकि मम्मी वाला जो मैके वाला फील्ड था, एजुकेशनल फील्ड था, सबको ऐसा लगता है एमए हो गए, डिप्ली हो गए, डॉक्टरेट लिया तो वही अच्छा है, ये कुछ ठीक ठाक नहीं. उस समय एक्टिंग करना, नाटक में काम करना या इस टाइप के कैटरिंग के, ये ऐसे माने जाते थे. माने कैटरिंग एक्टिंग करतो आहे, नाटकात काम करतो मुलगा म्हणजे वाया गेला, ऐसा समझते थे. बट ऐसे नहीं था. और फिर हम मम्मी को ले जाया करते थे कि मम्मी आप उनसे बात करो, आप बाकी काम हम निपटाएंगे. फिर मम्मी बात करती थी, काम हम लाते थे, और फिर दिखाने के लिए मम्मी को किचन में बिठा के रखते थे कि मम्मी आप खाली किचन में बैठो, हम बाकी हम संभालते. ये पहला हमारा ये था स्ट्रगल, वो था. और बाद में जितने वहाँ उस समय जो एक लेवल के कैटरर थे, उनसे ज्यादा हम कैसे बढ़े, तो वो काम आसान हो गया. मेरे पिताजी ने किया ऐसा समझो, क्योंकि आर्टिस्टिक सेंस होने के कारण हमारा प्रेजेंटेशन जो था खाने में वो अलग होता था, और डेकोरम था वो अलग होता था. तो वो लोग चाहने लगे. तो एक लेवल से हट के हमने हमारा काम शुरू किया. उससे हमारा हमें रेट भी अच्छा मिलता था. मतलब उस समय आपको बता दूं मैं, एट दैट टाइम 86 की बात होगी मेरे ख्याल से, 85-86 की. तो उस समय रेट जो था खाने का
तो मैं अभी आपको सभी को एक सवाल करूंगा कि मैं जो मेनू बताऊंगा अभी उसका रेट आप बताइए। उस समय था बेसिक मेनू होता था चना मसाला, आलू गोभी की सब्जी, गोभी, देन गुलाब जाम, पुलाव, पूड़ी और कोई यदि आपका बजट है तो दही बड़ा रखता था। तो आप गेस करिए उस समय क्या रेट होगा। चलिए पारुल पहले आप बताओ। सर उस साल तो मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी। ओके वैदेही मैम 30 रुपए प्लेट। जी 30 रुपए। ना ना 30 नहीं ना ना। अरे बाप रे, ज्यादा हो गया या कम है? बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया। उतना रेट यदि मिलता था मुझे तो मैं आज यहाँ नहीं रखता था, मैं हवा में बात करता था आपसे। 10 रुपीज। मैं बता दूं? बताओ। यस सर बिल्कुल। और कोई गेस करे तो अच्छा लगेगा मुझे। मैंने उस समय की यादें सबको आपको याद है, अभी भी ऐसा लगेगा उस समय है? बॉक्स में हाँ 5 रुपए रेट था इस खाने का, 5 रुपए या 6 रुपए, ठीक है। पारुल तो बोलती होगी क्या बोल रहे हैं भाई साहब। 5 रुपए या 6 रुपए मिलता था ये इस टाइप का खाने का। और हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के काम करते थे, हमको 6-7 रुपए मुझे बहुत ज्यादा रेट। 9 रुपए में काम करने वाला बहुत अच्छा कैटरर ऐसे माना जाता था उस समय। जगत जो था वो अव्वल था, और जगत का कैटरिंग है क्या ऐसा कहते थे लोग। तो वो जगत वाला भी एक बार हमारा काम देखने भगिनी मंडल में उसने देखा सब प्रेजेंटेशन। तो हमको उस दिन उस रात को मुझे नींद नहीं आई कि अरे वाह आज मेरा काम देखने जगत वाला है। तो उस समय की ये सारी बातें हैं, और धीरे 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 कारवां आगे बढ़ता गया। और फिर जैसे मैंने कहा कि मैं उस समय नामचीन नहीं था, तो कुकरी शोज में मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। तो मैं कहता था कि चलो भैया जो मिलते हैं वो ले लो, क्योंकि उससे मुझे प्रैक्टिस होगी। और फिर मैं क्या देखा कि मैंने कुकरी शो होने के बाद जो जेरोक्स होती थी ना, जिसपे रेसिपीज लिखी होती थी, उसमें लेडीज को ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने ये ठान लिया कि चलो अगले टाइम मैं क्या करूंगा कि मैंने जैसे 6 रेसिपीज बताना है, 6 की जगह 8-10 रेसिपीज का एक बंच बना के वो 2 रुपए का जेरोक्स में 3 रुपए में बेचता, उसमें 1 रुपया मुझे मिलता था। और जैसे 100 रिलीज है तो 100 रुपए मिलते थे। ऐसा करते करते फिर मैंने देखा कि जेरोक्स में तो खर्चा ज्यादा आ रहा है, हम किताब बनाते, तो किताब में फिर और 15 रेसिपीज होने लगी। और किताब पड़ती थी मुझे 1.5 रुपए या 1 रुपए में। 1000 किताबें छापो तो फिर मैं पीछे का पन्ना खाली था, तो मैं किसी को बोल के जो हमारे वेंडर्स थे उनकी एड डालता था, तो उनके एड्स की किताब छापता था, और किताब हो गई फ्री में। और फिर ये किताब मैं बेचता था 3 रुपए 4 रुपए। तो ऐसा मैं धीरे 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 को सर्वाइव करने लगा। उससे पैसे भी मिलते थे, काम भी बढ़ने लगे, और लोग जान पहचान भी होने लगी, और फिर कारवां आगे बढ़ता गया। सर अब आपकी बातें सुन के हमें ये तो बिल्कुल ज्ञात हो गया है कि आपने पैसे को बड़े नपे तोले तरीके से किचन में ही नापा तोला नहीं है, आपने पैसे को भी बढ़िया तरीके से नाप तोल कर खूब बढ़ाया है। सो आपने बहुत सारे शोज करे हैं रेडियो पे, लाइक सीधे तवा से एंड विविध भारती पे। यू हैड चेन ऑफ होटल्स जिनका जिक्र अभी हमने चैट बॉक्स में भी देखा कि पीपल हैव बीन टू योर यूएस के रेस्टोरेंट्स आल्सो। तो सर आई मीन हाउ डज इट फील टू एस्टैब्लिश सो मच? You started with just a little bit of it and reaching where you are today, from cookery shows and radio talks and hotels and everywhere you are just such a celebrity chef. So how does it feel? अच्छा तो लग रहा है, बट उसमें क्या हुआ कि अभी रेडियो के साथ साथ मैंने मेरा नया पॉडकास्ट भी शुरू किया है। हमारे मित्र हैं संदीप पारसकर जी, उनके साथ में। तो ये धीरे धीरे हुआ, एक साथ ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि मेरा गोल था जब मैं थोड़ा सेट होने लगा कैटरिंग बिजनेस में, तो मैंने बोला फिल्म लाइन में जाना है यार, मेरे को एक्टर लोगों से मिलना है, उनसे दोस्ती करना है। तो यही जरिया है कुकरी शो कि वो मुझे फिल्म तक ले जाएगा। और फिर मैंने मेरा पहला शो जो किया मेरे खुद के पैसे से किया दूरदर्शन पर 96-97 में, और कुकरी शो विद विष्णु मनोहर। तो उस समय एज अ शेफ मैं एस्टेब्लिश तो हो गया छोटे पर्दे पर। और फिर 2003 में पहली बार मुझे
ईटीवी ने चुना एज अ शेफ। उनका शो था मेजबानी। उन्होंने पहले 3 महीने के लिए लिया मुझे, फिर 6 महीने के लिए। मैं बोला एटलीस्ट 1 साल के लिए तो लो, तो नहीं, ऐसा करते नहीं क्या। 14 साल मैंने शो किया, फिर बोर हो गया, मैं खुद ही वहां से आ गया। तो 14 साल ये शो चला और उसके कारण, उसके जरिए मुझे इंडस्ट्री में सभी लोग जानने लगे, मैं उनको जानने लगा, काफी सारे इंटरव्यूज लिए और खुद को प्रेजेंट कैसे करना वो पता चला। और धीरे धीरे मेरी किताबें भी होने लगी, क्योंकि जब टेलीविजन पे आने लगा तो लोगों को, प्रेस वालों को दिखने लगा कि हाँ भैया ये ठीक ठाक बोलता है, ठीक ठाक रेसिपीज बताता है। तो जबरदस्ती मुझसे फिर लिखवाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा लोकमत सखी मंच कि जिन्होंने मुझे पहला अच्छा स्टेज दिया। और मेरा राइटिंग स्किल जो है वो लोकमत के साथ साथ सरकार, टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स, हितवाद, जितने भी यहाँ के या बाहर के पेपर से उन्होंने बताते गए। और धीरे धीरे पता नहीं चला मेरी 55 किताबें हुई। जो लड़का, वैद्य को पता है मैं बहुत पढ़ंतु नहीं था, बैक बेंचर था। जो लड़का पढ़ना मालूम ही नहीं था जिसको, या पढ़ाई करना सबसे बड़ी बात थी, उसने 55 किताबें लिखी। ये सब आप जैसे लोगों के भरोसे या जो प्रेस वाले मेरे पीछे थे उनके भरोसे। वर्थ कमेंडेबल जॉब एक्चुअली। और कहते हैं ना कि इफ यू फॉलो योर पैशन सो सक्सेस फॉलोज यू। इट इज लाइक अ पाइड पाइपर। आपने तो सक्सेस को अपने पीछे पीछे अपनी ट्यून पे बजा बजा के वापस पीछे बुलाया है। सो आई जस्ट आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि जैसे कुकिंग इन किचन इज वन थिंग बट कुकिंग ऑन द टेलीविजन इज ऑल टुगेदर अनदर। तो टीवी पे कुकिंग शोज कंडक्ट करना, तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेस्ट यू ऑन दिस। आई एम श्योर यू आर एन एस्टैब्लिश्ड शेफ, बट हमारे viewers, they just want to start with the recipe. So let's have one recipe at least for now, and we'll just test your skills. How different is it to put it on television? ठीक है, पहले तो मैं एक ड्रिंक बनाता हूँ बढ़िया, ठीक है। और वो ड्रिंक में मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया ये भी आपको बताता हूँ। 1 सेकंड मैं इस ट्रे में ले लेता हूँ, किसको मैं इसका जूम भी करूंगा तो मुझे कोई हेल्प करेगा सामने से कि ये सारा जो है मटेरियल हम बताएंगे कि ये थोड़ा सा सॉल्ट भी आप उसको उठा के यहाँ पे ये करिए। ये देखिए, ये जो है आंवले का जूस है, उसके बाद में ये अदरक का जूस है, लेमन जूस है, ये सब्जा है और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने लेना है, ठीक है, सॉल्ट। और इसको बहुत अलग तरीके से हम पेश करेंगे। सबसे पहले ये सॉल्ट जो है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लगने माने अच्छा तो लगेगा, उसके साथ दिखना भी अच्छा चाहिए। ये थोड़ा सॉल्ट, उसके बाद ये मैंने जो है थोड़ा सा इनो इसमें डाल दिया, ठीक है, इनो। ये बात अभी ये सारी चीजें जैसे ये आंवले का जूस, देन अदरक का जूस, लेमन जूस। अब ये ग्लास अंदर से कढ़ाई किया हुआ है। आप कहेंगे कि ये तांबे वाले में कैसे यूज करता, तो कढ़ाई किया है, ओके। देन अब देखिए जादू इसका तो सा, ये बात इसमें मैं डाल देता हूँ ये सब्जा, सब्जे का पीस, और हल्का मैंने थोड़ा सा गैप उसमें छोड़ा है। और वो क्यों छोड़ा आपको बाद में पता चलेगा। ये इसमें डाल दिया। नीचे से देखिए ये बात, ये हाँ। अब ये आप नीचे इधर यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, यहाँ पे, वहां से दूर से स्ट्रेट ले लीजिए, स्ट्रेट। ये नीचे देखिए कितना हो रहा है। एक्चुअली मिश्रण जो होगा यहीं तक भरना था, मैंने ज्यादा भर दिया एक्साइटमेंट में। ये नीचे जो दिख रहा है और दिखते दिखते ये जो एक्सपीरियंस हम ले रहे हैं कि भैया कुछ हो भी रही हलचल नीचे और हम कुछ पी भी रहे हैं, अच्छा, कि जो हमारा इम्यूनेशन पावर जो है वो बढ़ाता है। तो ये जूस, ये जो ड्रिंक है आप जरूर बनाइए। सब्जा है इसमें, आंवले का जूस है, और बाकी जो न्यूट्रिशन वाले ज्यादा बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या अच्छा मिलता है। So, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? Yeah, Parul, just translate those ingredients into English. Dr. Bhairavi wants to know in English.
The ingredients. Amla juice is the gooseberry. Secondly, we have adrak, that is ginger. Thirdly, we have lemon juice, and we have taken Salt. lemon and salt. Yeah. If you want jaggery, you can add jaggery also. What is sabja in English? Sabja means तुलसी का बीज. एक्चुअली सब्जा अलग होता है और इसका बीज, तुलसी का बीज अलग होता है. बट आप if you check it online, ma'am, it is available and it is a very good recipe ingredient to lose weight also. हाँ, मेरे लिए तो सबसे अच्छा है. नहीं सर, मैंने भी ट्राई करा है. So sabja is tulsi seeds. Yes. No, somebody posted is chia seeds. Is it chia? Sabja is different, tulsi seed is different. So somebody posted it is chia seeds. Is it chia? हेलो सर, ये सुनने के बाद हम अपना ट्रेडिशनल काढ़ा बाजू में रख सकते हैं एंड रोज सुबह ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक डेफिनेटली हम लोग सब पी के खा सकते हैं. सच में आप इसको बनाओ, पियो, आपका एक्सपीरियंस यदि शेयर करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा. ठीक है? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली we'll give you our feedbacks also on all the dishes you're going to tell us, which does not require any cooking. And I'm sure सब गायनेकोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम नहीं लगना चाहिए. क्विक रेसिपीज विदाउट गैस, तो we'll be more than happy of doing all that. आज की सारी रेसिपीज जो है विदाउट गैस ही है, तो आपको प्रॉपर देखी होगी ऐसे मैं आशा करता हूँ. ठीक है पारुल? यस सर. ओके, तो सेकंड रेसिपी की तरफ चले या कुछ बात करें और? सर, थोड़ी सी बातचीत के बाद अब हम सेकंड रेसिपी आपके पिटारे से निकलवाएंगे जी. तो कुकिंग इज ऑल अबाउट पीपल, जैसे कहते हैं. फूड इज द ओनली यूनिवर्सल थिंग दैट रियली हैज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो आपने तो सर इतना ट्रैवल करा है, सो व्हाट इज योर फेवरेट क्विजीन जो आपको लगता है कि इंडिया में आनी ही चाहिए? ये रेसिपी और ये क्विजीन तो ऐसी है कि मतलब इट इज माउथ वाटरिंग, एवरीबडी शुड टेस्ट इट, और इंडियन रेस्टोरेंट्स में ये रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए. मैं एक बात बताऊं पारुल आपको, कि जितनी रेसिपीज वर्ल्ड की इंडिया में अवेलेबल है, उतनी रेसिपीज वर्ल्ड के किसी भी कोने में अवेलेबल नहीं है. क्योंकि हम इंडियंस कैसे हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, हम नया चाहते हैं. ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि मेरी रेसिपीज, हमारी इंडियन रेसिपीज ये ज्यादा से ज्यादा बाहर जानी चाहिए. क्योंकि एक डॉक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि डॉक्टर अभय बंग जी का एक किताब है, माझा साक्षात्कारी हृदय रोग, उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो शाकाहारी, और ऑब्वियसली शाकाहारी खाने में फिर हम ये जो सात्विक खाना कहते हैं हमारा, वो है. हमारे खाने का डिजाइन हमारे पूर्वजों ने ऐसा बनाया है कि लेफ्ट हैंड की चटनियां, जिसमें आप तिल्ली का इस्तेमाल करते हो, जौ का इस्तेमाल करते हो, लहसुन का दाने का इस्तेमाल करते हो, ये सारी लेफ्ट हैंड की चटनियां, और राइट हैंड की सब्जियों में एक सॉलिड वेजिटेबल, उसके बाद में स्प्राउट्स वाला वेजिटेबल, उसके बाद में लिक्विडाइज वेजिटेबल, दाल, चावल, ये सारा एक जो पैकेज हमें मिलता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है. और जितने हमारे शेफ, इंडियन शेफ बाहर की रेसिपी सीखते हैं, उतना बाहर का कोई शेफ सीखा है इंडियन रेसिपी मैं नहीं जानता. आप किसी अमेरिकन शेफ से पूछिए, उसको झुमका आता है क्या, उसको पातर भाजी आती है क्या, उसको पनीर बटर आता होगा शायद एक आधे किसी को, पर ये जो नीच वाली जो हमारी बिल्कुल गांव से जुड़ी हुई जो रेसिपीज है, जो पौष्टिक है, वो नहीं आती उनको. तो मैं ये कहूंगा कि हमारी रेसिपीज ज्यादा से ज्यादा बाहर जानी चाहिए, ना कि बाहर की. आपको कर ही रहे हैं हमारे लिए, देश भर जगत भर में आप हर रेसिपी का प्रचार कर ही रहे हैं. एंड इंडियन क्विजीन इज डेफिनेटली द मोस्ट डिलिशियस. जितना भी मैंने भी ट्रैवल करा है, वी लुक फॉर एट द एंड अपना दाल, रोटी, सब्जी, दैट इज ओनली व्हिच गिव्स अस सैटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे. सर, इतना ट्रैवल करते हैं तो होटल्स में रुकते हैं और कहते हैं कि हैप्पीनेस इज होममेड, बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इज इट द होम फूड व्हिच यू लुक फॉरवर्ड टू, और इज इट बाहर का खाना कि आप घर का खाना रोज खुद बना के बोर हो गए हैं, कि आपको लगता है नहीं भाई मेरे को तो बाहर का खाना खाना है?
होता है ना, ऐसे तो बिल्कुल होता है कि क्या है, वैसे बेसिकली मैं शाकाहारी हूँ, वेजिटेरियन हूँ, और 8-10 दिन बाहर जाने के बाद घर का खाना जो दाल चावल रोटी सब्जी होती है वही सभी को अच्छा लगता है, मेरा ही नहीं सभी का ही है, पर मैं एंजॉय करता हूँ बाहर खाना कभी भी। तो हफ्ते में एक दिन तो मैं बिल्कुल बाहर जाता हूँ, नया कोई रेस्टोरेंट खुला वहां जाता हूँ, वहाँ क्या नया ताजा है वो देखता हूँ। सबकी अलग अलग आइडियाज होती, उसको देखना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। और जब भी एक आपका सवाल था कि किचन जो है आपका, घर का किचन या स्टूडियो का माने रेसिपी जो आप यहाँ बनाते हो ये अलग है, और स्टूडियो में आप बनाते हो शूटिंग के लिए, तो मैं आपसे यही सभी से कहूंगा कि भले सब्जेक्ट एक ही है किचन या खाना, पर इसकी ब्रांचेस बहुत अलग है, बहुत वास्ट है, इतना बड़ा वर्ल्ड है ये कि मैं कभी ये लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ जिसमें केवल इंडियन रेसिपीज का ये क्या बाइबल होगा ऐसा समझो। तो 22,000 रेसिपीज अब तक मेरे पास जमा हुई, और 9 साल से लिख रहा हूँ, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो कहना ये था मेरा कि घर का जो किचन है उसमें खाना बनाने का तरीका अलग होता है। हम हमारे बेटे के लिए जब टिफिन में कोई रेसिपी देते हैं या हमारे लिए बनाते हैं, तो वो भी उसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कि बेटे को देना तो नहीं, उसको थोड़ा न्यूट्रिशियस बना दे, उसमें थोड़ा सा चीज भी डाल दे, थोड़ा अच्छा लगे ये करते। जब हम खाते नहीं चल जाता ना मेरे को यार, चटनी रोटी में खा लो, ये चीज होती है। जब यही खाना किसी भंडारे में यानी जहाँ भगवान का बड़ा भोग लगता है, प्रसाद लगता है, वहां बनता है, तो वो भावना अलग होती है, वो स्टाइल अलग होती है। यही खाना जब हमारा रिसेप्शन में जाता है वो स्टाइल अलग होती है, और यही खाना जब हम टेलीविजन पे बताते हैं तो जो दिखता है वो दिखता है, ठीक है। तो टेलीविजन में जब बनाते हैं तो वो एक तो आपको अच्छा दिखेगा, तभी आप उसको देखोगे। आप देखोगे तो हमारा चैनल चलेगा, टीआरपी बढ़ेगा, टीआरपी रेटिंग पे हमारे ऐड मिलेगी तो पैसा मिलेगा, ये सारा ये चक्र होता है। तो उसके कारण अच्छे से अच्छी क्रॉकरी, अच्छे से अच्छा यूटेंसिल्स, अच्छे से अच्छी सब्जियां, कलर्स की, म्यूजिक, बात करना, ये सारा उसमें होता है। और जो बाजू में हमारी एंकर होती है उसको जो खाना हमारा बनता है वो कहना ही पड़ता है, ऐसे कहती है वो, वाह क्या बात है, वो खाना यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, वो वाह कह देती है, उसकी वो ड्यूटी है। तो ये सारा पारुल आपके सवाल का जवाब है कि यहाँ का खाना और स्टूडियो का। मेरा अगला सवाल वैसे यही था सर कि प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपने ये प्रूव कर दिया कि आंखें, नाक सब त्रस्त और तृप्त होना चाहिए, कि खाना खाने से पहले आंखें और मेरी नाक भी उतनी तृप्त होनी चाहिए जितनी मेरी टेस्ट बड्स। एंड आई टोटली अग्री विद यू सर। कहीं पे भी गए, प्रेजेंटेशन अच्छा मिला खाने का तो मन बिल्कुल ऐसा खुश हो जाता है, वाह क्या खाना पेश किया इन लोगों ने। इवन इन हाउस अगर किसी दिन अच्छे से सर्व हुआ तो हमें लगता है वाह कितना अच्छा खाना बना है। घर में घुसे और अच्छी खुशबू आई तो वाह क्या अच्छा खाना बना है। आई अग्री विद यू सर ऑन दिस। अब माँ की बात आपने करी थी कि योर मदर वाज द वन जिनको आप पटाखे लेकर गए और बोला कि मम्मा आप प्लीज हमारे लिए बात करो। तो कोई ऐसी रेसिपी जो आपकी मदर से जुड़ी हो, जो आपको दिल के बहुत करीब हो, तो इफ यू वुड वांट टू शेयर। हाँ, मेरी मम्मी ना खाली पेट और दीड़ा बहुत अच्छा बनाती थी, और फोड़नीचं वरण यानी बघारी दाल कहेंगे, और दाल इतने टाइप की बनती है, बट मम्मी क्या था फोड़नी का वरण बहुत अच्छा लगता था, और बहुत सिंपल वे में बना देती वो, और वो शेयर करना चाहूंगा यदि आप कोई इंटरेस्टेड हो तो। या तो फिर सर सब वेट कर रहे हैं कि आप रेसिपी बताओ। अच्छा बातें बोर होने लगी तो इंटरेस्टिंग है, बट रेसिपीज आपकी तरह सर हम भी अपना फायदा और ज्यादा फायदा ढूंढे जा रहे हैं। जी 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 पारुल आप बनाती हो खाना कभी? हाँ सर बनाती हूँ, बिल्कुल बनाती हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये दिरड़ा जो बनता था हमारे यहाँ, वो कुछ नहीं, मम्मी क्या करती थी कि रोटी बनाती थी, रोटी बनाते समय जो घोरन यानी आटा बच जाता था उसी में थोड़ा सा दही डालती थी, उसी में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे दरदरा पीसा वो डाल देती थी, जीरा डालती थी, हल्दी डालती थी, और इसको जो है ये छोटे छोटे डोसे टाइप बनाती थी। वो इतने टेस्टी होते थे कि बात करते करते मुंह में पानी आ गया।
और ये दिरडे हमारे यहाँ रसोई में है अवेलेबल। तो किसी को खाना है तो ये जैसे लॉकडाउन खुलता है आप आइए, मैं खिलाऊंगा आपको, मेरे हाथ से बना के खिलाऊंगा। और दूसरी जो बघारी दाल उसके हाथ की है, फोडणीचं वरण, तो वो फोडणीचं वरण वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाती थी। कुछ नहीं, भरपूर अच्छा हींग होता था उसमें, हरी मिर्च होती थी, बारीक कटी हुई धनिया। उसकी स्टाइल क्या थी कि वो जैसे दाल तो पका ली हमने, तुअर की दाल, उसके बाद में कढ़ाई में तेल डाला, तेल डालने के बाद राई डाली, हरी मिर्च डाली, और उसी बघार में वो धनिया डाल देती थी बारीक कटा हुआ, और हींग, हल्दी, दैट्स इट, इतना ही। और उसके ऊपर में दाल डाल के ये फिर खटास लाने के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर, नमक और शक्कर। ये दाल इतनी अच्छी बनती थी, बना अभी भी बनती है, मेरी भाभी बनाती है, बीवी बनाती है। तो पर इसकी एक ये थी कि जैसे बनी वैसे खाना चाहिए। वो तो कोई भी किसी की सब्जी का है, जैसे भिंडी की सब्जी, आलू की गोभी की सब्जी, आलू की गोभी की सब्जी, कि ये सब्जियां तुरंत आप बनाओ, तुरंत सर्व करो तो उसकी टेस्ट अलग होती है। थोड़ी देर के बाद उसका कलर भी डाउन होता, उसका टेस्ट भी ये होता। वो कितना भी फिर आप माइक्रोवेव में गर्म करो या कढ़ाई में गर्म करो, वो मजा नहीं आती। Vishnu, as Maharashtrians, I think all of us can survive all our lives on varan bhat. वरण भात, अभी बराबर, यस, सही बात। सर मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, बट यहाँ पर आकर बिकॉज आई एम मैरिड, मेरी लव मैरिज है, तो मैंने इतना रिलिश करा है ये वरण भात। बोलता था ना पारुल के साथ किसका नाम डालना है, तो आपने बोली नहीं कुछ। सर सिद्धार्थ साउथ जी, बता रही हूँ। शर्मा रही है। ओके सर बहुत रिलिश करती हूँ मैं ये, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे नॉर्थ में सर रोज राइस नहीं बनता है, मतलब मेरे घर में नहीं बनता, दैट इज व्हाट आई नो। तो किसी एक दिन राजमा या छोले के साथ बनता है। तो जैसे वैदेही मैम ने कहा ना, मैं आई हैव बिकम अ डाई हार्ड फैन। यहाँ पर आके मेरे को रोज राइस और दाल, वरण भात, आई मीन आई रियली रिलिश इट, रियली रिलिश। कभी मेरे यहाँ पे आओ, मैं आपको मेरे हाथ की दाल और चावल खिलाऊंगा। सर बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद आपके यहाँ पर आकर मैं बिल्कुल खाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के साथ। चलेगा चलेगा बिल्कुल। तो एक दही बड़ा बता दो। हाँ दही बड़ा चलेगा? बिल्कुल सर। चलो दही बड़ा बनाते हैं, और उसके लिए ना बहुत सरल बोल देना, ये बोल। अब इसमें मैंने लेना है स्प्राउट्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि दही बड़े में स्प्राउट्स कैसे आए, ये बात दूसरी है। अब इसमें छोटा सा आलू हम ले लेंगे काट कर, थोड़ा ये नींबू का रस, सॉल्ट, हरी धनिया। अब इसको क्या करेंगे, मुझे थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, ये मसाला मेरा बन गया। ये स्प्राउट जो है आपने हल्के गर्म पानी में निकाल लेना है, तो ज्यादा मजा आएगा उसमें। अच्छा। हल्के और गर्म पानी में हाथ से मरोड़ना है ना, जब तक चम्मच से मरोड़ेंगे तो टेस्ट नहीं आता। टेस्ट तो नहीं आता, बट ये क्या ना, ये क्रश करना है, उसमें मजा आती है। हाथ धो के बढ़िया हाथ की पूरी टेस्ट है। नहीं सफाई करते हैं। वो फिरंगी लोगों से ऐसा अपना खाना नहीं टेस्टी बनता, चम्मच से, हाथ से बनता है। हाँ, चम्मच से कैसे रोटी चावल खाते हैं समझ में नहीं आता। समझ नहीं आता। हमारे घर में भी वही हाल है, बच्चे चम्मच से रोटी चावल खाते हैं। आप देखिए ये मसाला जो है बना हुआ, ये बढ़िया खट्टा मीठा इस टाइप का मसाला है। अब ये मैंने ले लिया ब्राउन ब्रेड, ठीक है। ये ब्राउन ब्रेड, ये पानी, नॉर्मल टेम्परेचर पानी लेना है या वार्म पानी लेना है? नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल।
ये थोड़ा सा नमक, ये थोड़ा नींबू का रस, थोड़ी शुगर में डाल दो। अब ये पानी जो है कैसा हुआ पारुल? टेस्ट क्या होगी पानी की? खट्टा मीठा सा हो गया है सर। जी, याद रखना ये वर्ड था, खट्टा मीठा पानी हो गया। अब इसमें हम डुबाएंगे ब्रेड, ज्यादा नहीं डुबाना, ठीक है। और जितना एक्सेस पानी है मैंने निकाल लिया। इस पे मैंने ये भर दिए स्प्राउट्स और थोड़ा सा आलू, और इसको मैंने ये एक बढ़िया सा गोल शेप दे देना। दूसरा ब्रेड, ये तो बढ़िया म्यूजिकल डिश हो रहा है। अरे म्यूजिकल डिश मैंने क्या है कि जो हमें काम अच्छा लगता है ना, वो काम अच्छा करते समय हम खुश हो जाते हैं। और आप जैसे लोग सब सामने बैठे हैं और बड़ी तन्मयता से मुझे इतने बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना। ओके, आइए यहाँ पर। हाँ, ये हो गया होता हुआ दही, बढ़िया, ठीक है। सर दही में चीनी या कुछ मिक्स करना है हमें? बिल्कुल कर दो। दही में मैं वही कह रहा था कि दही में नमक डालना है मैंने, ठीक है। अच्छा। और थोड़ा सा शक्कर यदि आप डालो तो, कोई लोगों को शक्कर अच्छी लगती, कोई लोगों को नहीं लगती, ठीक है। आप इसके ऊपर सर जो ये ब्रेड हमने लिया उसके मार्जिन हमको रिमूव करने हैं या फिर वी कैन टेक इट एज अ होल? हाँ, देन ये थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी हरी धनिया, बहुत उसको ये नहीं करना, क्या पूरा उसको कवर नहीं करना। पारुल तीखा पसंद करती हो? हाँ सर, दिख रहा है। नहीं, तीखा पसंद करती हो आप? हाँ सर, मेरे सरनेम है ना सर, साहू जी। हाँ, चलो ये तो मिर्ची पाउडर आपके लिए। ओके, अभी ये बन गया दही बड़ा, जिसके लिए ना गैस की जरूरत, ना तेल की जरूरत। और ये ऐसा बड़ा देखे आप यदि किसी बोलो कि बढ़िया डाइट दही बड़ा है, इतना देखते ही कोई बोलेगा कि वाह क्या बात है, कोई कहेगा नहीं, क्योंकि देखिए हम दही बड़े, वाह क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या है कि दही बड़ा जब हम बनाते हैं तो दही बड़ा बनाने के बाद उसको हम पानी में डुबाते हैं तेल, और सारा तेल निकाल देते हैं, ठीक है ना। किसी को कहो ही मत कि आपने इसको तेल में नहीं किया। अब आप पहले बार मैंने जब किया, क्या होता कि गरज ही शोधाची जननी असते, असं मराठी मध्ये एक म्हण है। अब पारुल आप हिंदी में या अंग्रेजी में बता दो कि गरज ही शोधाची जननी मुझे क्या पहले है। समझ में तो आना चाहिए कि आपने मराठी में बोला क्या है। क्या है? Necessity is the need of the invention, ऐसा बोलता है। तो ये गरज क्यों पड़ी मुझे कि जब मैंने केवल ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करके बड़ा बनाया तो वो ना मुंह में ऐसे आ रहा था, ऐसे लग रहा था मैं कुछ आटा खा रहा हूँ इस टाइप का। तो नहीं बोला इसमें कुछ चबाने वाला आइटम चाहिए। तो चबाने वाला आइटम क्या है? तो स्प्राउट्स है, और स्प्राउट्स को इकट्ठा पकड़ने वाला आइटम क्या है? फिर आलू है। इससे थोड़ा सा आलू, स्प्राउट, और फिर वो खाने में मजा आने लगा और ज्यादा न्यूट्रिशियस हुआ। तो ऐसे ये दही बड़े की कहानी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक शेफ जो है वो खाली शेफ नहीं है। जो लोग अपने बेटे को शेफ बनाना चाहते हैं, उन्होंने अपने ये सारे ये खुले रखो कि उसको बनना है, बनने दो, करने दो मस्ती। क्योंकि वो खाली एक शेफ या खाना बनाने वाला कुक नहीं होता, उसको 4-4, 5-5 स्टाइल में काम करना था। एक तो सबसे पहले
कोई जब खाना बनाता है, कोई रेसिपी बनाता है, तो एक उसमें थॉट प्रोसेस होती है, सोच होती है, विचार होते हैं। तो वो क्या हुआ, एक थॉट करने वाला इंसान हो गया, ठीक है। उसके बाद में जब खाना बनाता है तो कुछ टेक्निक इस्तेमाल करता है, कुछ मशीन इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। आप भी आपके यहाँ का कुकर, आपको जितना मालूम कि उसको यहाँ से धक्का मारा तो शुरू होता है, मिक्सर आपके घर की, आपको मालूम है कि कैसे शुरू होती है, ठीक है ना। तो वो टेक्नीशियन हो गया। उसके बाद में किस में क्या डालना तो क्या होता है, कलर कैसा आता है, रंग कैसा आता है, टेस्ट कैसी होती है, तो वो उसमें आ गया विज्ञान, ऐसे कहते हैं होम साइंस, तो साइंस आ गया। ये सारा होने के बाद प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन में आपका कलाकार जो है जागरूक होता है कि कलर प्लेट कौन सी चाहिए, ठीक है, और कॉम्बिनेशन कौन सा चाहिए, गार्निशिंग में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सारी चीजें होती है। तो वो एक आर्टिस्टिक सेंस जो है आपका जागरूक होता है। ये सब रेसिपी बनाने के बाद किसी के चेहरे पर आप मुस्कान लाते हो, वो भी एक कलाकार का काम होता है। तो एक साथ आपका जो कुक है, आप में से जो कुक है, शेफ है, वो 5-5 सब्जेक्ट पे काम करता है, तो इसलिए उसको कम मत समझो। सर अभी हमने आपको गुनगुनाते और विसल बजाते तो सुना, एंड इट इज राइटली सेड, फूड इज म्यूजिक टू द सोल। तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से प्रूव करते हो। और हमारे कितने गाने हैं जिसमें खाने को बीच बीच में डाला गया है, जैसे गुरनाल इश्क मिठा, जलेबी बाई। सो फूड इज सच एन इंटेग्रल पार्ट एवरीवेयर एनीवेयर। एंड हमने सुना है सर, मतलब सुना क्या है, हमें पता है आपने ऑलरेडी एक्टिंग करी है, एंड देयर इज अनदर मूवी ऑफ योर्स which is coming up. So would you just tell us a little bit about that? नया जो मूवी मेरा आ रहा है, मैंने 4-5 फिल्मों में अब तक काम किया, और नया मूवी जो है उसका नाम है सर सेनापति हम्बीरराव मोहिते, जो मराठी का एक वॉरियर था शिवाजी महाराज का, और उसमें मैंने एक दत्तोजी पंत का बड़ा किरदार है कि जो हम्बीरराव के साथ रहता है हमेशा, तो वो किरदार मैंने निभाया। और टोटल अलग रूप है, ये बाल कुछ नहीं, उसमें बड़ा मजा आएगा, उसमें वॉरियर के रूप में आप मुझे देखोगे और मजा आएगा देखने में। तो ये फिल्म वैसे रिलीज होने वाली थी अभी, बट कोविड के कारण अगले साल होगी। 2021 में सर हम आपकी मूवी पक्के से देखेंगे। एंड मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछनी है सर आपसे, कि हर शेफ का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है। मतलब वैसे दे से सीक्रेट इंग्रेडिएंट टू एनीथिंग इज ऑलवेज लव, बट हर एक शेफ का एक इंग्रेडिएंट तो होता है जो उनका सीक्रेट होता है। तो सर प्लीज आप हम सबको बताइए कि कोई ऐसी चीज जो हम किसी भी चीज में डालें एंड खाना जस्ट टर्न्स वंडर्स, फिंगर लिकिंग फूड हो जाए कि हमारे हस्बैंड्स भी बोले वाह क्या खाना बनाया है। नहीं, ऐसे क्या होता है, हर रेसिपी के लिए फिर अलग अलग सीक्रेट इंग्रेडिएंट ढूंढना पड़ेगा, और मेरा ऐसे कोई सीक्रेट सच में इंग्रेडिएंट ऐसा कोई है नहीं, बट मैं हमेशा हरी धनिया को ज्यादा पसंद करता हूँ। कि वो कोई लोगों तो बच्चों को तो हरी धनिया भी पसंद नहीं, आजकल वो निकाल देते हैं रेसिपीज में से। तो ये हरी धनिया ऐसी चीज है कि वो डाले सब में, तो एक तो कलर भी, और मैं कहता हूँ कि वो रेसिपी को हंसाने का काम करती है हरी धनिया। बट ऐसे कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मेरे पास तो है नहीं, मैं सबको सिखाता हूँ, बताता भी हूँ। पर एक बात है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है कि आप कोई भी खाना अच्छे मूड से हंसते हंसते यदि बना, वो खाना अच्छा बनता है। नो नीड ऑफ टू मच टाइप ऑफ मसालाज एंड ऑल दिस, काजू किशमिश ये वो अगड़म बगड़म, वो शेफ का मसाला ऐसे कुछ नहीं। हल्दी मिर्ची हिंग बढ़िया प्यार से खिलाने की तमन्ना यदि आप में है तो कोई भी खाना अच्छा बनता है। ये है सीक्रेट। एकदम सही, नहीं का एकदम सही। यस सर। अब सर हम यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, और हमारा ये न्यूट्री फेस्ट वीक है, और सर आप इतना डिलिशियस खाना बनाते होंगे घर में, तो मुझे ये पूछना है दैट हाउ डू यू कीप द न्यूट्रिटिव कंटेंट आल्सो, मतलब हाउ डू यू मेक इट हेल्दी एंड टेस्टी, मतलब क्या करें हम कि द फूड इज हेल्दी एंड टेस्टी आल्सो। अरुण बेसिकली बताऊं कि मुझे ये कम तेल वाला ये वो अगड़म पगड़म ना, मैं बनाता हूँ जरूर, पर मुझे बेसिकली मुझे अच्छा नहीं लगता वो खाना। बट फिर मैं अच्छा तो हमें भी नहीं लगता, खाना पड़ता है सर। अब मैं
गलत आदमी से ये सवाल किया है वैसे चाहो तो, बट मेरी बीवी इसका बहुत ख्याल रखती है। वो हमेशा ये करती है कि ये कैसा न्यूट्रिशियस बने। जैसे मैं सारे ग्रेवीज में काजू और मगज का इस्तेमाल करता था, देन कोई जो व्हाइट सॉस वाली रेसिपी है उसमें मैदे का इस्तेमाल करता था, इंस्टेड ऑफ मैदा एंड काजू मगज उसने एक बढ़िया आटे का फार्मूला मुझे दिया। तो मेरे हाथ का पनीर बटर मसाला आप खाओगे, आप नॉर्थ से हो तो आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें काजू नहीं है, इसमें आटा डला है। 272 मेरे ख्याल से कैलोरीज पर पोर्शन होती है काजू में, आटे में उतनी कम होती है। तो इंस्टेड ऑफ काजू आटे का इस्तेमाल बहुत बखूबी से मैं करने लगा। और व्हाइट सॉस में भी हमारे घर में भी आटे का ही इस्तेमाल होता है, तो ध्यान वैसे रखा जाता है। बट अभी न्यूट्रिशन की बात कही आपने, तो एक बहुत अच्छी कविता मैं आपको सुनाता हूँ, चलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कितने लोग मराठी है वो लोग तो जानेंगे, बट जो हिंदी है वो शायद सही समझ पाएंगे, तो उनके लिए मैं माफी चाहूंगा। पर ये कविता डाइट के ऊपर है। और नट सम्राट नाम की एक बहुत अच्छी मूवी आई थी मराठी में, नाना पाटेकर जी थे उसमें। और वो नट सम्राट जो था उसके ऊपर उसके घर वालों ने बहुत ही ज्यादती की। तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आके उसने एक बहुत अच्छा लंबा चौड़ा भाषण भी कहा कि मरू या जगाव की मराव, मैं जिंदा रहूं या मरू, ये सारा देख के। तो वही सिचुएशन मेरे ऊपर भी आई। मेरे घर वालों ने मुझे भूखा रखा, खाने नहीं दिया, डाइट करने बताया। तो जो रोज अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया टाइप का खाना बनाता है खाता है, उसको यदि कोई लाके दे कि भैया ये स्प्राउट से एक कटोरी आपको खाना है, इसमें 1 चम्मच नमक डालना है, बाकी कुछ नहीं, उसको उसके दिल पे क्या बीतेगी? पारुल बताओ आप, मेरी आप बताओ क्या बीतेगी? खूपच म्हणजे संकट हो ना? संकट, तो धर्म संकट। तो उसके ऊपर मैंने क्या लिखा कि ऐसा समझो कि टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर बहुत ही पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, जीरा राइस, दही समोसा, दही कचौड़ी, उसके बाद में ब्रेड रोस्ट पड़े, गुलाब जाम है, दही बड़ा है, रसमलाई है, आइसक्रीम है, सब बना है। और मेरे हाथ में किसका बाउल है? एक सूजी का बाउल है। तो मैं क्या हुआ, बघावं की खावं एकच सवाल, बघावं की खावं एकच सवाल आहे। या किचन मधल्या विस्तीर्ण डायनिंग टेबलवर पसरलेल्या वेगवेगळ्या चवदार चटकदार पदार्थांकडे नुसतंच बघावं, की पाडून टाकावा फडशा त्या सगळ्या पदार्थांचा आणि करावा सर्वांचा शेवट, लाडवाचा, गुलाबजामचा, जिलबीचा, मालपुयाचा आणि शेवटी या डायटिंगचा सुद्धा। अहो लावलं त्या जिभेच्या टोकानं त्या पुरणपोळीला असं टंक मारावा की नंतर येणाऱ्या निद्रेला नसावा जागृतीचा किनारा कधी। पण अशानं माझं वजन पुन्हा वाढू लागलं तर तिथंच तर मेघ आहे। अहो डायटिंगच्या नावाखाली आम्ही ओलं सुकं घेत बसतो, सहन करतो आमच्याच चटोरेपणावर होणारे परिणाम, भरत असतो डायटिशियनची भरमसाठ बिलं आणि अखेर आमच्याच घरात चोरासारखे डबे उरकत बसतो वेगवेगळ्या फळाच्या पदार्थांचे। अन्नपूर्णे तू इतकी कठोर का झाली? अन्नपूर्णे अगं तू इतकी कठोर का झाली? एका बाजूला जिला आम्ही वेगवेगळ्या पदार्थांच्या चवी खाऊ घातल्या, ती आम्हाला दिवसते आमची बायको हे खाऊ नका ते खाऊ नका, आणि दुसऱ्या बाजूला तू सुद्धा आमची पोटं वाढवते। मग या विस्कटलेल्या देहाचे गोळे घेऊन या ढेरपोट्यांनी कोणत्या हलवायच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवायचं ग? कोणत्या हलवायच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवायचं? तू पी किंवा खा, एकच सवाल, डायटिंग। काय झालं? मजा आ गया, मजा आ गया, एकदम स्पीचलेस, कोई बोला नहीं कुछ। मैं कुछ गलत नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल मजा आ गया। ओके, अनम्यूट नहीं क्या बात है, क्या बात है सर। थैंक यू। हा फरक असतो जसा आता जब भी जैसे पारुल ने कहा ना कि यहाँ खाना बनाना, घर में खाना बनाना या स्टूडियो में खाना बनाना, क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है जैसे हम अभी ऐसे जुड़े हैं, यही प्रोग्राम यदि लाइव होता तो आप सब लोग ताली बजाते थे, सही मुझे आपके चेहरे पे खुशी दिखती थी, हंसी दिखती थी, और मैं और उत्साहित होकर और कुछ कहता सही। और तो ये कलाकार को तो डिजिटल तालियों वाले का खाना चाहिए। ये कहीं हम मिस कर रहे हैं सभी लोग। यस, पर विष्णु जी, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू इन द चैट बॉक्स कि अप्रतिम कविता होती है, अप्रतिम प्रेजेंटेशन होता है। थैंक यू, थैंक यू सर। अब हम आपकी एक और नो गैस डिश की रेसिपी जानना चाहते हैं। अब बहुत बढ़िया है। तीखा हो गया, ड्रिंक हो गई, तो कंक्लूजन स्ट्रेस का उल्टा डेजर्ट, वो हम
जानना चाहते हैं आपसे। बहुत ही सरल मस्त मीठी रेसिपी है, ठीक है, और विदाउट ये है क्या, विदाउट गैस, विदाउट ऑयल, पर घी इसमें डलेगा डबल। पर डाइट वाले कहते हैं ना कि 1 चम्मच घी तो रोज खाना चाहिए वैसे, ठीक है ना, 1 स्पून भी लेना है। हाँ, इसको बताओ यार, पास लगाओ कैमरा। ये पाउडर बना के रखा मैंने, क्या है, दलिया होती है, दलिया, दलिया नहीं, ये फुटाने की दाल जो होती है ना, फुटाने, चने फुटाने वाले। आरोप सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बीच बीच में हाँ हाँ किया करो, क्योंकि मेरे को आप लोग दिखते नहीं, मुझे केवल आवाज से। मैं इंग्रॉस हो जाती हूँ कि मैं सीख लूं कुछ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ठीक है, 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है, और ये फल्ली दाने भुने हुए छिलटे के साथ मैंने डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद वैसे, हाँ वैसे गुड़ डालना है, गुड़ नहीं था मेरे पास, तो ये पाउडर शुगर 2 चम्मच, ओके। इसको सारा मिला लो आप, सारा 1 चम्मच, 2 चम्मच, ज्यादा नहीं। साजुक तुप, असली घी, और घी भी हमारे घर में बनता है। घी के बारे में एक ये बात बता दूं आपको कि जितना ताजा घी आप खाओगे उतना मजा आएगा। तो हमारे घर में जो घी बनता है वो 3 दिन में 1 बार बनता है। हमारे घर में बहुत पुराना घी या 1 हफ्ते वाला घी नहीं चलता, ठीक है। हाँ, तो आणि पेशवे तर, पेशवा जो थे, पेशवा वो रोज का रोज घी खाते थे, ताजा बना हुआ। ये सब मिला लेना, और इसमें बिल्कुल 1 चम्मच पानी या दूध ये मिला लो। बहुत ज्यादा नहीं डालना है पानी या दूध, क्योंकि शक्कर क्या होती है, तुरंत लिक्विडाइज होती है थोड़ा सा पानी लगने के बाद। हाँ, तो धीरे धीरे डालो, 1 चम्मच से नहीं हुआ तो फिर और 1 चम्मच डालेंगे, ऐसे इसका, और थोड़ा सा चाहिए। विष्णू, हे सगळं बनवल्यावर खातं कोण घरी? अरे खाने वाले बहुत है। एक तो हमारे बैक किचन की टीम है 3 लोगों की, और नहीं तो नीचे फिर रोज शाम को फूड फेस्टिवल होता है। हमारे घर में 16-17 लोग रोज खाना खाते हैं, तो ये निकल जाता। हाँ हाँ, और हमारा एक ग्रुप है, स्टूडियो ग्रुप मैंने कहा उसको, तो ये 4-5 लोगों का ग्रुप है। तो स्टूडियो ग्रुप में जिस दिन क्या क्या शूट हो रहा है वो उसमें डाला जाता है, और फिर किसी को यदि जो चीज पसंद है वो खाने आ जाता है बराबर। उसको मालूम है कि भैया 3-4 बजे 5 बजे तक इसका बंटवारा होता है, सब कोई डब्बे लेके आते ले जाते। अरे तो हमने क्या गुनाह किया? हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? आपको शामिल कर लेंगे अभी, ठीक है। चलो अब इसके बढ़िया लड्डू बनाते हैं। प्लेट देना, प्लेट थोड़ा सा पानी परत देता, अभी थोड़ा सा पानी मैंने फिर से लिया है, लड्डू बांध देता, ठीक है। हाँ, इसको चाहे तो आप इसकी बर्फी टाइप भी बना सकते हो, और ऐसे ही बना सकते हो। तो और मजेदार बनाने के लिए अभी बने नहीं है लड्डू, लड्डू के तरफ देखो अभी बने नहीं। मराठीत आपण म्हणतो ना, लाडू वळले पण तेवढेच गुळगुळीत गेले पाहिजेत ना, नाहीतर ती कला नाहीये। हाँ, मजा नहीं।
नहीं, गोल बनने चाहिए, एकदम गोल बनने चाहिए, बिल्कुल राउंड एंड नाइस। हाँ, अभी बेसिक लड्डू बना के रखा, इसको थोड़ा सा बढ़िया शेप दूंगा। लड्डू कौन बनाता है आजकल? जिम में जाना पसंद करोगे तो पहले के हमारे जो रेसिपीज थी, पहले का जो काम था, वही यदि हम करें तो देखो लड्डू बनाने के उंगली जो है, हाँ उंगली जो है उसको अच्छा एक ये मिल रहा है मेरे को, यस स्ट्रेस मिल रहा है, बड़ा निकाल। कितने लोग हैं वहां पर सभी? 120 थे अभी तक इसमें। अच्छा, इतने लड्डू तो नहीं बना पाऊंगा, पर मैं खिलाऊंगा। और ये लड्डू रहते भी अच्छे 8-10 दिन, कुछ नहीं होता, वैसे रहते ही नहीं, क्योंकि क्या है इतने अच्छे बनते कि हम तुरंत खा लेते इसको। अभी क्या करेंगे, धीरे से एक हाथ लेकर एक एक लड्डू को सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है अभी? अभी ठीक है सर। हाँ, नैपकिन ये ऊपर से बढ़िया चांदी वर्क से लपेट दे तो और इसमें मजा आता है। ठीक है, वर्क अच्छे क्वालिटी का लो, इतना ही कहूंगा मैं। इस टाइप का लेते समय इसको हाथ से हैंडल नहीं करना, ऐसे ही। एक नूर आदमी 10 नूर कपड़ा, कोई बताएगा भी नहीं या समझ भी नहीं पाएगा कि ये दलिए के या फुटाने के लड्डू बने हैं। ठीक, चलो बढ़िया, बहुत ही पारुल एंड वैजयंत, दिस इज फॉर यू। बाकी कितने लोग हैं सभी के लिए ऐसा समझो, ठीक है। अभी ये 2 लोग मेरे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ, पर ये डिश जो है आप सभी के लिए, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके सभी के नाम से ये आज की आखिरी रेसिपी। ओके Vishnu ji, is it possible to quickly repeat the recipe? A few people have requested. हाँ, बिल्कुल। देखिए in English if possible. कुछ नहीं, फुटानी ले लो या फुटाने की दाल ले लो, उसको मिक्सी में बारीक करना है। जैसे 2 कटोरी दाल पाउडर उसका बन गया, तो उसमें 1/4 चम्मच हम नमक डालेंगे और तकरीबन 3 से 4 चम्मच शक्कर, पाउडर शुगर या गुड़ आता पाउडर वाला, वो डालेंगे। 2 चम्मच घी डाला हमने, बाकी कुछ नहीं, फल्ली दाना भुना हुआ वो छिट्टे के साथ डाला और इसको 3 से 4 चम्मच दूध में लपेट कर उसके लड्डू बनाए। ऊपर से चांदी वर्क डाल दो आप। इसको और थोड़ा सा ये करना है तो इसमें आप फिर बादाम, काजू, किशमिश डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो। स्काई इज द लिमिट। यस, बढ़िया, मजा आ गया जी। थैंक यू सर, इतना मतलब डिलिशियस लड्डू और इतने बेसिक इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द किचन, ये तो मतलब बिल्कुल सोने पे सुहागा डिश है हमारे लिए फ्रॉम द विष्णु's kitchen. Absolutely, इतनी yummy and delicious दिख भी रही है, and we wish we could have actually had it in person, but virtual treat is also really relishing.
So to wind it up, I'm sure आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अब रिजल्ट्स का. So फेस्टिव ज्ञान न्यूट्रीफिट वीक का एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, जैसा अंजलि मैम ने हमको स्टार्टिंग में बताया था. 3 कैटेगरीज थी, हेल्थ ही, हेल्थ भी और टेस्ट भी. तो इन 3 कैटेगरीज में हमें बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज मिले हैं. एंड हियर वी हैव द वेरी great master chef who would be judging our master chef army and letting us know that who all are the winners for the contest. So over to you, Vishnu sir. We are looking forward for the results in each category. So to begin with, we'll have healthy high protein recipes. So could you please announce the results? हेल्दी डेजर्ट राउंड एक था, रंग बिरंगी राउंड एक था, और हाई प्रोटीन वाली एक रेसिपी. तो पहले मैं हाई प्रोटीन रेसिपीज के विनर्स को अनाउंस करूंगा, और बहुत ज्यादा समय या बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी को नहीं दूंगा कि पहले नहीं गेस करिए, ऐसा करिए, मैं कुछ नहीं. पहले तीसरा नंबर भी नहीं लूंगा, पहला दूसरा नंबर का नाम लूंगा. दूसरा नंबर जो है शोभा गांधी पनीर वेज दही भल्ला उन्होंने बनाया. शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और तीसरा नंबर जो था डॉक्टर दीप्ति किरकर. हाँ, सोयाबीन कटलेट बहुत अच्छे बनाए थे उन्होंने, दीप्ति जी. और मोहन जी, आप भी ताली बजाइए. और पहला नंबर जो था प्राजक्ता बर्डे, जिन्होंने बहुत अच्छी मल्टीग्रेन इडली बनाई थी. क्या बात है, तालियां सभी हो जाएगी. अभी दूसरा राउंड जो था तो हेल्दी डेजर्ट राउंड था. तो उसमें अंकिता कोल्हे ने सत्तू के ड्राई फ्रूट लड्डू बनाए थे. उसके बाद में डॉक्टर शांतला भोले, इन्होंने आटा ड्राई फ्रूट केक बनाए थे. मैंने अभी कहा क्या कि विनर है, विनर नहीं है ये. अभी मैंने कहा अनाउंस किया, मैं क्या कितने बनाए बता रहा हूँ. हाँ, प्राची आसुदानी, इन्होंने करंजी बनाई थी. और काफी सारे नाम है, ले लूं मैं, पर नाम नहीं लूंगा. अब ये तीनों में से पहला दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ठीक है. तो फर्स्ट नंबर जो जाता है, नहीं थर्ड नंबर, चलो प्राची आसुदानी तीसरा. भोले मैडम जो है उन्होंने आटा ड्राई फ्रूट केक बनाया था, उनको सेकंड नंबर. और फर्स्ट नंबर जो अंकिता जी कोल्हे, जिन्होंने सत्तू के ड्राई फ्रूट्स ये बनाए थे. Actually, I would like to tell you here, Ankita is the super master chef of our Ganax Society. क्या बात है, क्या बात है. हाँ, हमने 3 महीने पहले टैलेंट ऑफ द मंथ कॉन्टेस्ट में हमने culinary skills का कॉन्टेस्ट लिया था, and she was our champion in that contest. देखिए, जो खरा है वो बराबर निखर आता है. मुझे मैं तो जानता नहीं हूँ अंकिता जी को, ना देखा हूँ मैं. हमको भी तो पता नहीं था रिजल्ट्स. अभी भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे तरफ कैमरा उल्टा है. मैं केवल लेंस में देखकर समझ सकता हूँ कि हाँ, वैदी मैम अभी हंस रही होगी, अंकिता भी हंस रही होगी क्योंकि उनको रिजल्ट ये मिला है, पारुल भी हंस रही होगी, ठीक है ना. तो अभी रंग बिरंगी राउंड विनर, ये एक अच्छा राउंड था. और ये किसने निकाले सारे राउंड्स, बहुत अच्छे थे सच में. अरे प्रेसिडेंट मैडम को थोड़ा सा अच्छा ओके, बहुत बढ़िया. वैदे मैम है ये सब इनोवेशन के पीछे. अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया. ये प्राजक्ता बर्डे कौन है? I will do one thing, मैं ना settings change करती हूँ, so those who are present they can unmute themselves and then can talk to you for a minute. Yes. I'm just changing the settings. उनको भी पूछना तो पूछ सकते हैं. Yeah, मैंने settings change किए हैं, so after you announce the results, the winners can unmute and speak, because I have seen Shobha Gandhi madam, Ankita Kothe madam, they're all here. Okay, go ahead Vishnu, the last results. हेलो विष्णु सर, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा. We cannot hear you. प्राजक्ता बर्डे को भेजा मुझे. बाकी सब लोग म्यूट रखिए प्लीज. ओनली विष्णु सर वुड बी अनम्यूटेड. विष्णु सर अनम्यूट कीजिए.
मैं ऐकू नहीं येते विष्णु. बिकॉज आई चेंज द सेटिंग्स ना, विनर्स को बात करने का मौका दिया जाएगा, इसलिए मैंने सेटिंग्स थोड़े चेंज किए हैं. Wow, I am seeing all the winners now. Shantala is here, Prajakta is here. I hope Dipti and all is also. Dipti and all have joined probably. Rajyasree, can you make a call to them if they've not joined? Yes, ma'am. मुझे दीप्ति नहीं दिख रही. और कौन विनर्स के नाम लिए थे वो भी अगर अपन Hello? कर सकते हैं. Hello. Yes, just wait. Let Vishnuji announce all the results. And then if the winners want to say anything, they can. Till then, please keep yourself muted. Please keep yourself muted. हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, yeah, Vishnu ji, you have unmuted now. ओके ओके. तो क्या हुआ कि हाँ, हमारे सामने ऑपरेटर चेंज हुआ तो सेटिंग भी चेंज हुआ. एनीवे, तो अभी हाँ एक दो विनर बचे ना. हाँ, तो शोभा गांधी रंग बिरंगी शोभा गांधी जी थी, पालक बीट पराठा, सेकंड नंबर. वाह वाह, तालियां. दो बार विनर है. वाह वाह, दो कैटेगरी. थर्ड विनर जो है वर्षा चांडक, कैप्सिकम सलाद, कैप्सिकम का उन्होंने बनाया था, कैप्सिकम का. और उनको मैं थर्ड घोषित करता हूँ और आशा करता हूँ ये सारी रेसिपीज आप लोग बनाओगे, उसका टेस्टियल बना के मुझे फिर से बुलाओगे टेस्टिंग के लिए, जजिंग के लिए. यस, फर्स्ट विनर थे. हाँ जी, रंग बिरंगी का विनर, फर्स्ट विनर कौन है? फर्स्ट विनर प्राजक्ता, पिज्जा अप्पे. अरे वाह, प्राजक्ता, दो प्राइजेस. वाह वाह वाह, अमेजिंग. तो ये सारे रिजल्ट बहुत अच्छा लगा और मेरे ख्याल से अभी सबको भूख लगी होगी क्योंकि व्यंजन भी देख ली, मैंने भी देखा. मैं वैसे 10:30 खाना खाता हूँ, मैंने आज आपके लिए केवल कॉफी पीते हुए समय बिताया, बट अभी Thank you, Vishnu. I think the winners want to have a word with you, so maybe one by one they can speak if they want to. Prajakta, go ahead quickly. Hello. नमस्कार. Hello. Namaskar, sir. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. थँक यू सो मच. मला खूपच आनंद होतोय. हे माझं जस्ट फर्स्ट ट्रायल होतं. आय हॅव रिसेंटली जॉईन दिस कुकिंग, टेकिंग इन्स्पिरेशन फ्रॉम ऑल माय सिनियर्स अँड ऑल दॅट. आणि त्याच्यामुळे आय एम व्हेरी मच हॅपी. अँड तुम्ही अनाउन्स केलंय, तुमच्याकडनं सर्टिफिकेशन मिळालंय मला, म्हणजे माझा तर आजचा दिवस बनला. आय एम सो हॅपी फॉर दॅट. थँक्यू सो मच सर. थैंक यू कि माझं जे स्वतःचं एक सर्टिफिकेट जो मैंने बनाया है वो मैं सभी के नाम लिख के मैम के पास भेज देता हूँ. ठीक है, वैदिक मैम. ओह नो, थँक यू सो मच. मला पण थँक यू सर. एक सर्टिफिकेट वैदिक मॅडमना पण अरेंज केला म्हणून. आणि थँक्यू वैदेही मॅडम फॉर अरेंजिंग सच नाईस कॉम्पिटिशन्स. तुम्ही आमच्यातले सगळे असे कलागुण हळूहळू करत असे लेअर बाय लेअर बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करताय. थँक्यू सो मच. या शोभा मॅम. नमस्कार. नमस्कार. आतापर्यंत नातेवाईक आणि घरच्या लोकांनाच माझे पदार्थ आवडायचे, पण आता इतक्या मोठ्या शेफला आवडलाय. फार फार धन्यवाद त्याच्याबद्दल. आणि तुमचं सर्टिफिकेशन मिळाल्यानंतर काय म्हणजे वेगळाच आनंद आहे आम्हाला. तुम्ही ते बनवलं होतं छान म्हणून तुम्हाला नंबर मिळाला. थँक्यू सो मच. खरं तर हे खूप कठीण असतं की पदार्थ न बघता नुसतं जिभल्या ताटात मिटक्या मारत आवडले गेलं त्या पदार्थाचा रिझल्ट लावणं. तर याच्याबद्दलचे जे काय मला त्रास झाला त्या त्रासाची वसुली मी वैदिकडनं करून घेणार. 200%. 200%. चलो, Ankita wanted to say. Ankita, you wanted me to unmute you. Yeah. Namaskar. Good afternoon, everyone. Thank you, Vishnuji, for giving this. I mean, this is really incredible. I'm feeling so happy to receive this award from you. Sattu, our traditional product, our Indian traditional recipe hoti thi agdi. आणि तुम्हाला आवडली त्याबद्दल thank you so much and thank you for selecting me and thank you Vaidehi and team for giving us an opportunity to present our dishes.
Thanks, Thank you. Ankita, and congratulations. Shantala. Thank you. Thank you. Thank you, Vaidehi, for this amazing competition. I'm not a cook. I don't think of myself as a cook, but thanks to all the encouragement, and now the Vishnu sir has given me a certificate. I'm so happy today, really. My happiness knows no bounds. और ये केक मैंने जब से I tried it for this competition, उसके बाद मैंने 3-4 बार मेरे घर में बनाया है, and my daughter and my husband who are very very fussy, they loved it. So I request you all, please try it. नहीं, पार्सल भेज, ये नहीं चलता. Yes, और मैं विष्णु जी को आपको जरूर खिलाऊंगी. पर आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा, because ये गरम गरम और अच्छा लगता है, तो you'll have to come to my house for that. ये थोड़ा लॉकडाउन खुल जाए तो मैं जरूर आऊंगा घर पे. शांतला का घर अतिशय सुंदर है, so we'll all love to go and visit her place. और आप लोगों के आने से तो और सुंदर हो जाएगा, तो please do come. चलो, thank you. Yeah, great. Over to you, Parul. Thank you, Vishnu sir, for your presence. आपकी इतनी the journey, how did you get there? आपने क्या करा? सारी amazing dishes. It was wonderful having you across. It would have been more wonderful actually having you across the table, but across the laptop also. I think it was no less of fun. We really enjoyed it. It was absolutely great to have you with us, and congratulations to all the winners and all the participants who had given their recipes. And I would now like to call Anjali Dhote ma'am to take this further, and wishing everyone a happy Teachers' Day. And Anjali ma'am, we would like you to take it from here and invite all our esteemed faculty and pay our gratitude to them. Yeah. Before that, Parul, you've done an amazing job. Thank you ma'am, thank you so much. पिटारे से इतनी बढ़िया बढ़िया बातें, गाने, poems, whistling, recipes. We had a blast. बहुत बहुत मजा आया. And Vishnu ji, thank you ma'am, thank you so much. Vishnu ji, I'm really thankful you've given me this opportunity. I enjoy doing this, and you make me do this. I'm really thankful and grateful to you and the entire team Energy for all the appreciation and love. Thanks a lot. Yeah, you deserve it. You're amazing. And Vishnu ji, thank you. तुला किती thank you बोलू, तू माझा लहानपणीचा मित्र आहेस आणि आम्ही क्लासमेट असतो. मी हक्काने तुला बोलवलं, तू असा इतका बिझी असताना सुद्धा you gave your time for us. I'm indebted to you. So thanks once again. And you can log out now, and you must be hungry. मस्त जेवणावर ताव मार. आपण नंतर बोलू. Thank you once again. Thank you. Thank you, Vishnu sir. Thank you very much. Yeah. Thank you. Yes, Vishnu sir. Yes, sir. जाते जाते 4 लाइनें सुना देता हूँ गाने की. Please. बिल्कुल सर, बिल्कुल. प्रसून जोशी जो है, प्रसून जोशी, उन्होंने लिखी है. अपने राजस्थानी महिला का एक विचार है और विचार करने वाला ये सॉन्ग है. बाबुल जिया मोरा घबराए, बाबुल जिया मोरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मोरा घबराए. बाबुल मोरी इतनी अर्जियो सुन लीजो, हे बाबुल मोरी इतनी अर्जियो सुन लीजो, मोहे राजा को घर ना दीजो, मोहे राजा के घर ना दीजो, मोहे राज करना वे, बाबुल जिया मोरा घबराए, हे बाबुल मोरी इतनी अर्जियो सुन लीजो, मोहे सुनार के घर ना भेजो, मोहे सुनार के घर ना भेजो, मोहे गहने रास न आए, बाबुल जिया मोरा घबराए. आखिरी स्टांजा गौर से सुनिए. हे बाबुल मोरी इतनी अर्जियो सुन लीजो,
मोहे लोहार के घर भेजियो, मोहे लोहार के घर भेजियो, जो मेरी जंजीरें पिघला दे। बाबुले जिया मोरा घबराए। Thank you. So such a lovely message in the most melodious voice which we have heard today. And चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. But because we are time constrained, over to you, Anjali ma'am. Our teachers are waiting, and Vishnu sir, it was lovely, amazing to have you with us. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so sir. much. Thank you, Vishnu sir. Thank you, Parul, so much. You were indeed too good, and nobody could have been better than you in this job. Thank you, ma'am. Thank you so much. Teachers guide us, support us, inspire us, teach us. Today is the day to thank them and say, Guru